Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for class 10th students. The matter is energy flow in an ecosystem, the part of natural resource. In previous video lecture I have discussed about what is ecosystem, the part of biospheres or part of our atmosphere where the abiotic component, that is the non-living components like soil, water, air, sunlight interact with the living components or biotic components like human being, cow, buffalo, by means of the producer, consumer, etc. They are actually form the well-developed system, and that system is known as ecosystem. The ecosystem, the study of ecosystem, in previous video lecture I have described you, is called the ecology. So all about the terms regarding the ecosystem is clear. What are the basic components of our ecosystem? That is the producer, consumer and decomposer. In board examination, the importance of decomposers may ask them, what are the role of decomposers? Actually, decomposers are those microorganisms that belong from either bacteria or fungi and decompose the remaining organic matter from producer and consumers. It means they are often called as the environmental cleaner or biological cleaner. Without it, we cannot assume that our environment remain clean. If the all decomposers get eliminated from our system, then the organic matter that become a waste product from the producer or consumers remain accumulate throughout the our ecosystem by means of the biomagnification process and cause toxicity to us. So importance of decomposers are very essential to know. Here I am talking about what is producer, consumer. In previous video lecture you have learned the producer are those living organisms that directly fix the atmospheric, fix the sunlight, that directly gain the energy from sunlight and relay to the atmospheres. It means producers are the living organism that directly consume the energy from sunlight and relay it to the next part of ecosystem. The next part of ecosystem after producer is the consumer. In previous video lecture I have discussed about the trophic level. In first trophic level, the place for first trophic level is reserved for the producer, and second trophic level are actually consumers. So producer are often green plants. Producer are often green plants, and they able to fix the energy from sunlight by means of photosynthesis. So what are the importance of producer in our atmosphere, in our life? Producer help to trap the energy from sunlight and relay to the next ट्रॉपिक लेवल. जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम लोग अगर सेकेंड ट्रॉपिक में डायरेक्ट अगर प्लांट सोर्स पे डिपेंड है तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सन से नहीं गेन कर सकते. सन से हम विटामिन डी की सिंथेसिस अपने बॉडी में तो कर सकते हैं, एनर्जी नहीं गेन कर सकते. एनर्जी को गेन कौन करता है? सबसे पहले एनर्जी को स्टेबल कौन करता है? प्रोड्यूसर स्टेबल करता है. ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए कि ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एनर्जी का जो सोर्स है ना अर्थ एटमॉस्फेयर पे, वो सनलाइट है. तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में. सन इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. अर्थ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, की सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कौन है? सनलाइट है. ठीक है, सनलाइट, सन इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. सनलाइट भी लिख सकते हैं. ठीक है, ग्रीन प्लांट फिक्स द एनर्जी फ्रॉम sunlight by means of photosynthesis. क्लियर है? तो यहां पे पी ली दिया तो प्रोड्यूसर हो गया. ठीक है, और प्रोड्यूसर क्या करता है? सन की एनर्जी को एटमॉस्फेयर में अपने आप में फिक्स करता है. कितना परसेंट एनर्जी? एग्जाम में आता है कभी 1%. ओवरऑल
एनर्जी दैट फिक्स फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर इज 1%। क्लियर है? प्रोड्यूसर में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स। इसके बाद अगले जनरेशन, अगले ट्रॉपिक लेवल, ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कंज्यूमर आएंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में भी कंज्यूमर आएंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में भी कंज्यूमर आएंगे। कंज्यूमर की सीरीज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से शुरू होती है, ठीक है। लेकिन वो कैसे, कौन कौन से कंज्यूमर है? प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है। तो आगे जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पे मैं T2 कर दिया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये T1 कर दिया प्रोड्यूसर या T1, क्योंकि ये ट्रॉपिक लेवल पहला है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और प्रोड्यूसर के लिए रिजर्व है, लेकिन कंज्यूमर कोई फिक्स नहीं है, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। इसके बाद क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर है T3। इसके बाद क्या है? क्वार्टरनरी कंज्यूमर हो सकता है। फिर यहाँ पे जाने की टर्शियरी कंज्यूमर या क्वार्टरनरी कंज्यूमर डिपेंड कर रहा है कि फूड कितनी लंबी है फूड चेन। अभी फूड चेन समझा रहा है, पहले ये समझे कि ये 10%, ये 1% एनर्जी सनलाइट से प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स हो गया, एटीपी के रूप में स्टोर हो गया ग्लूकोज के फॉर्म में। अब इसको सेकेंड ट्रॉपिक लेवल वाला कोई ऑर्गेनिजम्स अगर खाया, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ये टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के एग्जांपल क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर के एग्जांपल है हर्बीवर्स, हर्बीवर्स, और ये कार्निवर्स कहां से शुरू होता है? एग्जाम में आता है, कार्निवर्स हमेशा थर्ड ट्रॉपिक लेवल से शुरू होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवर्स, प्राइमरी कॉर्निवर्स। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कॉर्निवर्स, सेकेंडरी कॉर्निवर्स। तो कॉर्निवर्स शुरू कहां से होते हैं? थर्ड ट्रॉपिक लेवल से, उसके पहले हर्बीवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे मैं बात कर रहा हूं ग्रास, ग्रास, और ग्रास को कौन खा रहा है? माइस, और माइस को कौन खा रहा है? ईगल, और ईगल को सपोज दैट कैट खा गई। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गया कि एनर्जी कहां से आ रहा है? सनलाइट से ग्रास में, ग्रास से माइस में, माइस से ईगल में, ईगल से कैट। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज दैट यहाँ पे ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, इस ग्रीन प्लांट को कौन खा रहा है? सपोज दैट इस ग्रीन प्लांट को डियर खा रहा है, ठीक है, इस ग्रीन प्लांट को डियर खा रहा है, और डियर को सपोज दैट कोई वॉल्फ खा लिया, वॉल्फ मार के खा गया, और वॉल्फ को कोई लायन खा गया, ठीक है। तो एनर्जी कहां से फ्लो हो रही है? सनलाइट से ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट से डियर में, और डियर से वॉल्फ में, और वॉल्फ से लायन में, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मान लो कि कोई एल्गी है, एल्गी, ठीक है, एल्गी कोई है, ठीक। अब ये एल्गी से नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई एल्गी क्या होता है? एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एल्गी को कौन खाता है? एल्गी को खाते हैं छोटे छोटे कीड़े, जिसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े जिसको बोलते हैं जूप्लैंक्टन, सॉरी जूप्लैंक्टन्स। और एल्गी भी बहुत छोटा छोटा होता है, उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स मींस द लिटिल प्लांट्स इन वाटर। क्लियर है? तो फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? लिटिल इंसेक्ट, लिटिल इंसेक्ट। और लिटिल इंसेक्ट क्या है? जूप्लैंक्टन्स, इसको बोलते हैं जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन्स। और जूप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? स्मॉल फिश, स्मॉल फिश छोटी मछलियां, और छोटी मछलियों को कौन खाता है? बिग फिश। यानी कि हमारा ग्रीन प्लांट्स यानी कि एल्गी सनलाइट से एनर्जी को फिक्स कर लिया, और ये एनर्जी किसको मिला? लिटिल इंसेक्ट यानी कि जूप्लैंक्टन्स को, और जूप्लैंक्टन से एनर्जी किसको मिल रहा है? जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश को मिल रहा है, और स्मॉल फिश से बिग फिश से मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये क्लियर है कि सनलाइट से एनर्जी वॉल्फ को नहीं मिला डायरेक्ट, सनलाइट से एनर्जी बिग फिश को नहीं मिला, सनलाइट से एनर्जी डियर को डायरेक्ट नहीं मिला। सनलाइट से एनर्जी किसको मिल रहा है? सनलाइट से एनर्जी मिल रहा है ग्रीन प्लांट्स को, यानी कि प्रोड्यूसर को, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी आता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होता है, तो यहाँ पे सीधे स्टेल में आ जाएंगे,
चेन में आ जाएंगे और मिलाएंगे कि इसमें से कौन एक्वाटिक इकोसिस्टम लग रहा है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम लग रहा है ये एल्गी, ठीक है, एल्गी, फिश, ये सब एक्वाटिक, एक्वाटिक मींस पानी में रहने वाले। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर कौन है? एल्गी है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है? ये आता है जूप्लैंक्टॉन्स। एक्वाटिक इकोसिस्टम में थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है? स्मॉल फिशेस। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है? बिग फिशेस। एक्वाटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम पूछता है कभी कभी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप माइस लिख दीजिए, डियर लिखिए, ग्रास ही होगा, ठीक है, लेकिन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में डियर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्रासलैंड जहाँ पे घास होती है, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट्स, ये भी ग्रासलैंड है, ये भी ग्रासलैंड है, लेकिन ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल है। देखो ग्रासलैंड जहाँ पे घास होती है वहां पे डियर भी हो सकता है, माइस तो मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन डियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम, तीनों मैंने बता दिया। अब आपको जानना क्या है कि एनर्जी का फ्लो कहां से कहां होता है। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू द टॉप लेवल कंज्यूमर। उसको लास्ट को क्या बोलते हैं? टॉप लेवल कंज्यूमर। इसको बोलते हैं हम टॉप लेवल कंज्यूमर, हमेशा टॉप लेवल कंज्यूमर, टॉप लेवल कंज्यूमर, ठीक है। टॉप लेवल कंज्यूमर पे अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। सो द फ्लो, ये एनर्जी देखो हमेशा चेन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमेशा प्राइमरी, हमेशा जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में। एक एग्जांपल ले लो, जैसे ग्रास को माइस और माइस को ईगल और ईगल को कैट खा रहा है, लेकिन कभी भी ये ईगल को माइस, ये एरो इस साइड से इस साइड नहीं आएगा, ईगल को माइस या माइस को प्लांट नहीं खा पाएगा। ऐसे ही आप इस इधर देख लीजिए, ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है? डियर, डियर को कौन खा रहा है? वल्फ, और वल्फ को लायन। जो कंडीशन है कि ये वल्फ को डियर नहीं खा पाएगा और डियर को कोई प्लांट नहीं खा पाएगा, हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो एनर्जी का, अब एनर्जी के केस में देखेंगे कि ये सबके पास एनर्जी तो है भाई। ये ग्रास को माइस क्यों खा रहा है? अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, और लाइफ को सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी को। तो ये ग्रास से एनर्जी किधर जा रही है? ये जो येलो कलर का मैंने एरो दिखाया है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है सनलाइट से एनर्जी हमेशा ग्रीन प्लांट्स में ही आ रहा है। इसमें देखो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, सबके पास एक ही एबिलिटी है, फोटोसिंथेसिस की। तो ये ग्रीन प्लांट्स में आने के बाद एनर्जी किधर जा रहा है? हमेशा अगले ट्रॉपिक लेवल में, यानी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में। तो यहाँ पे एक आइडिया मिल रहा है कि एनर्जी इन एन इकोसिस्टम ऑलवेज फ्लो सिक्वेंशनली। दैट इज, हमेशा एनर्जी कैसे फ्लो होता है? सिक्वेंशली, लीनियरली फ्लो होता है। लीनियर मीन्स क्या होता है? चेन में। तो इसको डिफाइन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, द लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी, द लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल कंज्यूमर। द लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल कंज्यूमर कॉल्ड एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम और फूड चेन। दिस कॉल्ड एज फूड चेन। बहुत इंपॉर्टेंट है फूड चेन। तो दोबारा से मैं बोल दे रहा हूं, उसको नोट कर लो, मुंह से ही बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं। द सिक्वेंशनल फ्लो ऑफ एनर्जी और लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड फूड चेन। चेन मीन्स क्या होता है? सीधा होता है। अभी ये बताएंगे कि फूड वेब भी होता है, पहले फूड चेन को आप समझ लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो फूड चेन मीन्स द लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल कंज्यूमर। अब इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हमको पता है कि सन में जितनी एनर्जी अवेलेबल है उसका 1% तो प्रोड्यूसर लेता है। इसके बाद प्रोड्यूसर से कितना परसेंट कंज्यूमर लेते हैं और कंज्यूमर से आगे टॉप लेवल कंज्यूमर में कितना परसेंट जाता है। ध्यान से सुनो, एक साइंटिस्ट आए थे लिंडेमांस, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ध्यान सुनो। लिंडेमांस के बारे में आप जानिए। सबसे पहले मैं यहां पे एक चीजें क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, सनलाइट से एनर्जी 1% तो प्रोड्यूसर में आया, लेकिन आगे कितना परसेंट गया? यानी कि सपोज दैट इसको 1000 जूल अगर अवेलेबल है एनर्जी, तो इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा। लिसन, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1% एनर्जी सनलाइट से प्लांट्स को मिलता है, ठीक है। सनलाइट में जितनी एनर्जी अवेलेबल है उससे 1% प्लांट में मिलता है, लेकिन प्लांट के बाद जितने भी इसमें ट्रॉपिक लेवल आ रहे हैं सबको सिर्फ 10% ही एनर्जी मिल पाती है अपने प्रीवियस वन से। यानी कि
प्लांट्स से जो एनर्जी इसको मिलेगी उसका 10% मिलेगा, जितनी भी एनर्जी इसमें है उसका 10% सेकेंड ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स को मिलेगा, जितनी इसकी एनर्जी है उसका 10% किसको मिलेगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल वाले को मिलेगा, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जितनी एनर्जी उसका 10% किसको मिलेगा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल वाले को मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दैट यहाँ सनलाइट में अगर 1000 जूल एनर्जी अवेलेबल है, तो 1000 जूल का 1% क्या करेंगे, 2 जीरो गायब कर दो, 2 जीरो, तो इसको कितना जूल मिलेगा, 10 जूल मिल गया। अब 10 जूल ग्रास को मिला, तो माइस को कितना मिला, 1 जूल, क्योंकि ये 1 का 10% 10 का 1% 1 जूल होता है। अब इसके बाद कितना मिलेगा, इसको 10% तो हो जाएगा 0.1%, 0.1 जूल, यानी इसका 10% निकाल देंगे, 1 का 10% कितना होता है, 0.1 जूल। अब इसका जो है 0.01 जूल किसको मिलेगा, कैट को मिलेगा। तो इस हिसाब से कैट को प्लांट्स के कंपेयर में बहुत कम मिला। ठीक है, तो ये है एनर्जी का फ्लो, दिस इज कॉल्ड एज द 10% फ्लो ऑफ एनर्जी और लिंडेमान 10% लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना आए तो कहना, लिसन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, लिख लो कॉपी में, लिंडेमान 10% लॉ। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इन एवरी इकोसिस्टम, इन ईच इकोसिस्टम the 10% sum of 10% total energy flow from producer to top level consumers in each trophic level। लिख लीजिए कॉपी में, यहां पे लिख दे रहा हूं, according to this law the sum of 10% energy flow, the sum of 10% energy flow from producer to top level consumer, यहाँ पे टॉप लेवल लिख देना, प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल कंज्यूमर, in each ecosystem, in each trophic level, a top level consumer in each trophic level, according to this law the sum of 10% energy flow from producer to top level consumer in each trophic level called as Lindemann 10% law. It means according to this law, if an organism, if the sunlight, if there are 1000 joule energy available in sunlight, then the fourth tropic level organisms will get only 0.01 joule energy. This is called as Lindemann 10% law, and this will follow only for the food chain. Food web do not represent any kinds of Lindemann 10%. 10% लॉ कहां से रूल शुरू होता है, सनलाइट से नहीं शुरू होता है, ये 10% लॉ शुरू होता है हमेशा प्रोड्यूसर से। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और लिंडमान 10% लॉ। ठीक है, अब आते हैं फूड वेब, इसमें हम लोग ये चीजें क्लियर कर लें और एग्जाम में ये निश्चित तौर पे आएगा। एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ये वैल्यू बदल देगा। ठीक है, सपोज दैट ये प्राइमरी कंज्यूमर में सपोज दैट प्रोड्यूसर में 10,000 दे देगा। ठीक है, सपोज दैट देयर आर 10,000 एनर्जी अवेलेबल इन प्रोड्यूसर, तो ये प्रोड्यूसर में 10,000 अवेलेबल है, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स को कितना मिलेगा। तो इसके बाद कुछ स्टूडेंट यहीं से 1% नहीं, सनलाइट में अगर है तो वहां से 1% शुरू करेंगे, यहां से तो 10% शुरू होगा, तो इसको कितना मिलेगा, सीधे मिलेगा 100 जूल, इसको कितना मिलेगा 10 जूल, और इसको कितना मिलेगा 1 जूल। इसका 10% निकालेंगे, 1000 का 10% 100 होता है, 100 का 10% 10 होता है, और 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। तो ये यहां से तो 10% लगेगा रूल, लेकिन सनलाइट से 1% पहले जोड़ लेंगे तब जाके यहां से 10%। तो यहाँ पे अगर प्लांट्स में अवेलेबल है तो बाकी सब 10% लगाते जाएंगे, प्लांट्स में है तो 1%। ठीक है, अब आते हैं हम फूड वेब को क्लियर कर दे रहे हैं। फूड वेब क्या है, लिसन, फूड वेब को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सपोज दैट ये क्या है, सीड्स किसका पार्ट है, प्लांट्स का। ठीक है, सीड्स को कौन खा गया, माइस। सीड्स को कौन खा गया, माइस। आप जानते हैं सीड्स को माइस ही नहीं खाता, स्पैरो भी खाती है, स्पैरो। और सीड्स को इंसेक्ट्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स पा जाएगा तो इंसेक्ट्स भी खा लेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा एक सिंगल हमको सोर्स ऑफ एनर्जी मिला, सीड्स ऑफ प्लांट्स, और उसको
खाने वाले तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स एक ही ट्रॉपिक लेवल में मिले। कौन मिला? इंसेक्ट्स मिला, स्पैरो मिला और माइस मिला। ठीक है, अब अगर अगले जनरेशन में आते हैं, सपोज दैट कैट है, तो कैट की खास बात है माइस को भी खा सकती है, इंसेक्ट को भी खा सकती है। ठीक है, और आगे की कंडीशन में जाते हैं, लिजार्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिजार्ड लिख दे रहा हूं। तो लिजार्ड की खास बात होती है कि ये इंसेक्ट को भी खा सकती है। ठीक है, अगर स्पैरो है तो ये लिजार्ड पाएगा, ये लिजार्ड जो है, लिजार्ड को कैट भी खा सकती है, और स्पैरो जो है स्पैरो इंसेक्ट को भी खा सकती है। ठीक है, अब यहां पे मैं वॉल्फ लिख दिया, वॉल्फ। तो वॉल्फ जो है कैट को भी खा सकता है, वॉल्फ माइस को भी खा सकता है, स्पैरो को भी खा सकता है। ठीक है, वॉल्फ चूंकि हंगर रहेगा तो लिजार्ड को भी खा सकता है। तो यहां पे हमको क्या मिल गया? हॉच पॉच वाली कंडीशन मिली कि नहीं मिली? हॉच पॉच वाली कंडीशन मतलब ये है कि जब आपको वेब लाइक पैटर्न्स मिला, वेब लाइक नेटवर्क के जैसा, जाल के जैसा, तो उसको बोलते हैं फूड वेब। तो लिख लीजिए कॉपी में, द वेब लाइक पैटर्न ऑब्टेन्ड ड्यू टू interaction of various food chain in an ecosystem called food web। यानी एक फूड वेब में ढेर सारे फूड चेन होते हैं। देखो, एक फूड चेन ये गया, दूसरा फूड चेन यहां से यहां गया, तीसरा फूड चेन यहां से यहां गया, और चौथा फूड चेन यहां से उधर गया। तो एक जो है फूड वेब में ढेर सारे फूड चेन हमको मिल गए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट लिंडेमान 10% लॉ, फूड चेन, फूड वेब पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। फिलहाल आप इसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।